It is always an honor and a pleasure for me to come to Tamil Nadu. You know my relationship with the people of Tamil Nadu. It gives me tremendous joy to come to this wonderful state. And today, coming here to the southernmost tip of our country and looking out here into the beautiful sea, it gives me great joy to be beginning this Bharat Jodo Yatra from this beautiful place. All Keralites are very happy to receive Rahul Gandhi to revive the nation, to make a change in the nation. He is coming here. He is willing to listen to these people. He is real people's man. Rahul Gandhi ki I feel genuine affection for the people of Kerala. No matter how much affection I give, I get more back. For me, it has been an honor to walk the streets of this wonderful state. A divided and hate-filled Kerala or a divided and hate-filled India is not in our interest. From which part of society the person comes. If he spreads hatred, if he spreads violence, if he spreads anger, the Congress party will fight that person. I'd like to end by thanking all of you for walking with us, for giving us your love, your affection and your support. We are permanently in debt. We can never repay this. Thank you. कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है. My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल. इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी. We will help you, we will make your life easier, and we will support you the way a government should. Thank you for your love and affection. Thank you for your help. Thank you for walking with us through Karnataka. अभी भारत जोड़ो यात्रा में हम आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं.
लोगों ने हाथों में आरती की थालियां लिए और फूल बरसाते हमारा स्वागत किया। यहाँ की भी वादियाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर से पहाड़ और रास्तों से हम अभी चल के आ रहे हैं। हम भी जोड़े, जोड़ो जोड़ो, I am seeing this yatra as a tapasya in understanding our people, in understanding our land, and in understanding myself. When this bifurcation took place, certain commitments were made to the people of Andhra Pradesh. Those are fundamental commitments, and they are commitments made by the Indian Union, and we think those commitments should be fulfilled. This is a very good starting point to build the Congress party in Andhra Pradesh. Thank you for walking with us. Thank you for your love and affection. Thank you for your help. तेलंगाना हो या कश्मीर हो, माँ और मातृभूमि का ख्याल जो रखता है उस पर ईश्वर का हाथ हमेशा रहता है। हम अपनी दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं, हम तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। Right now, I'm involved in this yatra. My job is to walk from Kanyakumari to Kashmir, listen, and to make every single person who comes to me, regardless of religion, regardless of community, comfortable when they're walking in that yatra. That is the only thing I'm seeing right now. The two things, education and health, we should be give most of the budget. हमारे लिए टीआरएस और बीजेपी एक ही चीज है। दोनों की दोनों पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ हैं, सरकार गिराने का काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने यहाँ खड़े होके ये शुरुआत कर पा रहा हूँ। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। महाराष्ट्र हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। आगे बढ़ो। नफरत छोड़ो और डरो मत are the two singular focal points for which we have joined. जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। मैं 13-14 दिन आपकी सड़कों पे चला हूँ और लाखों लोगों से मिला हूँ। युवाओं ने अपने सपने मेरे सामने रखे, किसानों ने अपना दर्द मेरे सामने रखा। जो मेरी राजनीतिक समझ थी महाराष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में, वो आपने बदल दी। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं इस सफर को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा।
बातचीत होगी, बहुत गले लगेंगे आपसे, किसानों की समस्या समझेंगे। इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे ये पूछ रहा है, राहुल जी इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? ये अंबेडकर जी की जमीन है, संविधान की जमीन है और तिरंगे की जमीन है। ये एक चिन्ह है और संविधान के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें शक्ति है तो वो शक्ति तिरंगे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है। इस देश में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है सिद्धांत और मूल्य और आदर्शों वाली राजनीति की, और राहुल गांधी ये सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। ये हिम्मत का देश है, महाराणा प्रताप जी का देश है और इसको डराया नहीं जा सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर डरोगे नहीं, नफरत नहीं पैदा हो सकती। राम राम साहब, राम राम साहब। देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए। इस 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए। आपने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया, विकास का काम बहुत अच्छा किया, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली उस दिन यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। मार्क माय वर्ड्स, द बीजेपी इज गोइंग टू बी टेकन डाउन बाय द कांग्रेस पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम। कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी हमारे बीच पधारे हैं। चलो हरियाणा की इन सड़कों पे हम चले और हरियाणा की जनता के दिल में जो दर्द है उसको सुने। ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब लोगों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं जिनको सामने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये यात्रा उनकी है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, आने वाला समय हरियाणा की जनता का, किसान का, मजदूर का होगा। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है,
चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हरियाणा महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है, मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सबक नहीं। भारत तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो। आपने इतना प्यार दिया, मैंने भाषण में कहा था आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी की बात एक है, लोग एक है, जात एक है, यूपी के जज्बात एक है। ओ भेदभाव की बातें छोड़ो, आओ मिलकर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, आओ मिलकर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। आपकी जो हिस्ट्री है, जो रास्ता आपके गुरुओं ने दिखाया है, उसका मैं आदर करता हूं, उसके सामने मैं सिर झुकाता हूं और वो मेरा रास्ता भी है। पंजाब का हर एक किसान हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता, मगर वो अपने खेत में रोज चलता है, मंडी तक पैदल जाता है, बीज खरीदने पैदल जाता है। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, इन सड़कों पे चलता है। मैं पंजाब से कहना चाहता हूं, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। ये पंजाब का इतिहास है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपके किसानों, मजदूरों के दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को काम करना चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। क्यों दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है तो निकले, हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए।
डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। शुरू करेंगे। प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम शुदा बरसा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। स्पीड देखी तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। राहुल गांधी जी ने जनता के जो मुद्दे हैं लड़ेंगे, खासकर जो कश्मीर की समस्या है। यहाँ असेंबली बनकर ये स्टेट बनेगा कश्मीर।